B.Ed General Awareness. First question. Right to education is provided under option A Article 14, option B Article 19, option C Article 21A, option D Article 25. ତେବେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆର୍ଟିକିଲ 21A. 21A. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. Free and compulsory education is for children of age. Option A 0 to 6 years. Option B 6 to 14 years. Option C 5 to 18 years. ना option D 3 to 14 years. ତେବେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଅନୁସାରେ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ଥିଲା କୋଉଠି? ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ of SC ST is under option A Article 15, option B Article 46, option C Article 21A, option D Article 30. ତାପରେ promotion of educational interest of SC ST is under Article 46. ତେଣୁ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ Article 46. Next question. Minority institution protection is given under option A Article 21, option B Article 25, option C Article 29 and 30, option D Article 32. ତେବେ ମାଇନରିଟି ହେଲା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା? ଆର୍ଟିକଲ 29 and 30. ମାଇନରିଟି ପାଇଁ 29 and 30. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. Equal opportunity in education is related to Article 14, option B Article 15, option C Article 16, option D Article 21. ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଦର୍ଶାଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆର୍ଟିକଲ 15. ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 15. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ଭାରତନାଟ୍ୟମ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ option A କେରଲା, option B ତାମିଲନାଡୁ, option C କର୍ଣ୍ଣାଟକ, option D ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଭାରତନାଟ୍ୟମଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ? ଭାରତନାଟ୍ୟମ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଭାରତନାଟ୍ୟମ ହଉଛି ତାମିଲନାଡୁର। ତେବେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ବିଟି। ତେଣୁ ଭାରତନାଟ୍ୟମ ତାମିଲନାଡୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. କଥକ ଇଜ ମେନଲି ଫ୍ରମ୍ ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ ସି ବିହାର, ଅପସନ ଡି ଗୁଜୁରାଟ। ତେବେ କଥକ ନୃତ୍ୟଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ? କଥକ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେଟା ଉତ୍ତର ସଠିକ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ୟୁକେ। ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ୟୁକେ, ବିଟି, ଏକେ ଏମିତି ମନେ ରଖିଦେଲେ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ ବି ଆସାମ, ଅପସନ ସି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଅପସନ ଡି ତ୍ରିପୁରା। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସହଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବିଡି ଏକ୍ଜାମ ଦଉଥିବେ ଇଗ୍ନୋରେ, ତ ଏଇଟା ସହଜ ହେଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଲଙ୍ଗ କରେ ଓଡ଼ିଶୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ମଣିପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ ଫ୍ରମ୍ ଅପସନ ଏ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ ବି ମିଜୋରାମ, ଅପସନ ସି ମଣିପୁର, ଅପସନ ଡି ତ୍ରିପୁରା। ତେବେ ମଣିପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟର ପ୍ରଧାନ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମଣିପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ ଫ୍ରମ୍ ମଣିପୁର। ମଣିପୁରରୁ ମଣିପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. କଥକଲି ଇଜ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଅଫ୍ ଅପସନ ଏ ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ ବି କେରଲା, ଅପସନ ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତେଣୁ କଥକଲି ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କଥକଲି କେରଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଥକଲି କେରଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. କୁଚିପୁଡି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଅପସନ ଏ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଅପସନ ବି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ ସି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତେଣୁ କୁଚିପୁଡି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କୁଚିପୁଡି ହେଇଯିବ କାହାର? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର। ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏକେ, ବିଟି, କେକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ସତ୍ରିୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ ଫ୍ରମ୍ ଅପସନ ଏ ଆସାମ, ଅପସନ ବି ମଣିପୁର, ଅପସନ ସି ବିହାର, ଅପସନ ଡି ଝାଡଖଣ୍ଡ। ସତ୍ରିୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ ଫ୍ରମ୍ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ସତ୍ରିୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ?
राइट आंसर हे जिवो आसाम रो आसे सत्रिय डांस टा आसाम रो जिबा परवर्ती प्रश्न द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट ऑप्शन ए पटना ऑप्शन बी कोलकाता ऑप्शन सी बॉम्बे ऑप्शन डी मद्रास तो आमे जानिचे कोलकाता बॉम्बे मद्रास एक समय रे हेइथिला यूनिवर्सिटी किंतु प्रथमे केउठी निर्माण करा जायथिला फर्स्ट यूनिवर्सिटी व विश्वविद्यालय हमर कोलकाता रे ही स्थापित होइथिला कोलकाता मने रखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the following is a fundamental right in the Indian constitution option A right to property option B right to education up to 6 to 14 years option C right to work option D right to travel abroad so which one of the following is a fundamental right in Indian fundamental right hoche right to education next question the national policy on education NEP was first introduced in option A 1968 option B 1976 option C 1986 option D 1992 तो राइट आंसर एठी कोन हे जिवो प्रथमे हमर हेतिला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बा एनपी 1968 रे कहा समय रे इंदिरा गांधी को समय रे नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया हु इज known as the father of modern education in India. Option A Rabindranath Tagore, Option B Raja Rammohan Rai, Option C Swami Vivekananda, Option D Dr. S Radhakrishnan. ତେଣୁ କିଏ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଜନକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଏଜୁକେସନ CAB was set up in option A 1935 option B 1945 option C 1952 option D 1966 Central Advisory Board of Education केबे सेटअप हेतिला राइट आंसर हे जिवो 1966 मसिहारे 1966 नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज पब्लिश्ड इन ऑप्शन ए 2000 ऑप्शन बी 2002 ऑप्शन सी 2005 ऑप्शन डी 2008 तेबे हमर जो रहिला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वा पाठ्यक्रम सेटा केबे पब्लिश हेतिला राइट आंसर हेजो 2005 तेबे त नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ ता कहारो एनसीईआरटी अंडर रे तयारी करा जायतिला नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन यूईई इज ऑप्शन ए क्वालिटी इंप्रूवमेंट ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ना एक्सेस टू ऑल चिल्ड्रन ना वोकेशनल ट्रेनिंग तेणु ये जो रहिला हमर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन एटा होची एक्सेस टू ऑल चिल्ड्रन समस्तक पई एहा प्रयोज्य अटे नेक्स्ट क्वेश्चन which article of the constitution deals with the promotion of education and economic interest of weaker sections option A article 15 option B article 16 option C article 21A option D article 46 तबे राइट आंसर एठी हेजिबो 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन तेनु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिमम एज ऑफ ए चाइल्ड फॉर एडमिशन टू क्लास 1 in primary school is generally option A 4 years option B 5 years option C 6 years option D 7 years तेनु गोटे मिनिमम एज कोन हबा दरकार जोठी गोटे पिला प्राथमिक विद्यालय रे नाम लेखाई परिबो राइट आंसर हे जाउची 6 वर्ष हेले ही प्रथम श्रेणी रे नाम लेखाई पारिबे नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA फॉर NEP was formulated in the program of action POA केबे फॉर्मेट हेतिला ऑप्शन A 1992 ऑप्शन B 1995 ऑप्शन C 1999 ऑप्शन D 2000 तेबे हर राइट आंसर हे जाउची 1992 मसिहा और 1992 जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हु चेयर्ड द एजुकेशन कमिशन 1964 to 66 इन इंडिया ऑप्शन A कोठारी ऑप्शन B राधाकृष्णन ऑप्शन C मुदलयर ऑप्शन D सर्जेंट तेणु किए जो एजुकेशन कमिशन टा आनिथिले 1964 66 रे मन पकांतु राइट आंसर एठी कोन हे जिवो कोठारी कमिशन आस्ते हमर 1964 रु 66 मध्य रे जिबा परवर्ती प्रश्न द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग ए टीचर इन इंडिया इज प्रेस्क्राइब्ड बाय ऑप्शन ए UGC ऑप्शन बी NCERT ऑप्शन सी NCTE ऑप्शन डी AICTE
द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग ए टीचर तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन होइथो योग्यता कौन हेतिबा दरकार गोटे शिक्षक हेबा पई तो शिक्षक भित्तिक जहाँ भी आमे मन रखिबा एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इज ऑप्शन ए एक्सक्लूजन ऑप्शन बी फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन सी स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स ऑप्शन डी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। तेणु आम जी रहा डिस्टेंस रे जो शिक्षाटा आम ग्रहण करें किपरि हेबा आवश्यक राइट आंसर एठी कोन हेजो फ्लेक्सिबिलिटी थिबा आवश्यक फ्लेक्सिबल न हेले ताहा कोन कष्ट साध्य होई जिवो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी एनसीईआरटी रो केउटी को गोटे फंक्शन नुहे। ऑप्शन ए करिकुलम डेवलपमेंट ऑप्शन बी टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन ऑप्शन सी टीचर एजुकेशन ऑप्शन डी ग्रांटिंग यूनिवर्सिटी स्टेटस। तो आम लक्ष्य करबा एनसीएफ मध्ये एनसीईआरटी रो गोटे पार्ट एनसीटी मध्ये गोटे पार्ट किंतु ग्रांटिंग यूनिवर्सिटी स्टेटस एहार गोटे पार्ट नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए करिकुलम डिजाइन ऑप्शन बी लर्निंग आउटकम्स ऑप्शन सी टीचर टाइप्स ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। तेबे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टा काहा को रिलेट करे एठी कोन हेजिबा राइट आंसर तो एठी हेजिबा लर्निंग आउटकम शैक्षिक फलाफल उपरे निर्भर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर्स प्राइमरी फंक्शन इज टू ऑप्शन ए punish students option b maintain classroom control option c facilitate learning option d rank students। तेणु गोटे टीचर प्राइमरी टीचर फंक्शन करे केमती एठी राइट आंसर कोन हेजिबो कोन से नेगेटिव जिंस को हम एठी एक्सेप्ट करबानी तो राइट आंसर हेजिबो फैसिलिटेट लर्निंग। तो एठी टीचर रो भूमिका होची से केवल गोटे गोटे फैसिलिटेटर हेई परिबे गोटे गाइडर हेई परिबे साहाय्य करि परिबे साहाय्य कर्ता हेई परिबे। तेणु एठी टीचर रो भूमिका से केवल शैक्षिक माने परिस्थिति टाको एमिति करिवे जोठी पिला माने आपे आपे शिखिबे किंतु टीचर सेठी केवल फैसिलिटेटर जोगाई देबे जोगाण कार्यटा ही से करिवे किंतु पिलाटी निजे निजे करी सब जिनिस शिखिबो तेणु फैसिलिटेटेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फासाइज ऑप्शन ए रोट लर्निंग ऑप्शन बी पैसिव लर्निंग ऑप्शन सी एक्टिव लर्निंग ऑप्शन डी मेमोराइजेशन। तेणु कंस्ट्रक्टिव गठनमूलक शिक्षाटा कहले आमे काहाको बुझिबा एठी तेबे गठनमूलक शिक्षा कहले आमे रोट लर्निंग माने घोषिक अवधारणा जनित शिक्षा एठी राइट आंसर हेजिबा एक्टिव लर्निंग जोठी समस्त सक्रिय अंशग्रहण करि पारुथिबे एक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच लर्निंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन स्टिमुलस रेस्पॉन्स ऑप्शन ए कॉग्निटिव थ्योरी ऑप्शन बी बिहेवियरिज्म ऑप्शन सी ह्यूमनिज्म ऑप्शन डी कंस्ट्रक्टिविज्म। तेणु व्हिच लर्निंग थ्योरी किपरि शैक्षिक स्तरटा हमर हेतिबा दरकार बिहेवियर तांकर व्यवहारिक स्तर रे कोन हेतिबा नमनीय होइतिबा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट इज कॉल्ड जेतेबेले आमे पिला माननकु किछि गोटे परीक्षा करिथांती पिला केते शिख हासिल कला बा शिक्षण स्तरटा कोउठी तो सेटा को आमे कोन कहबा टीचिंग ना इवैल्यूएशन ना कंक्लूजिंग ना प्लानिंग। तो राइट आंसर हे जो आमे इवैल्यूएशन बा मूल्यांकन करबा आमे ताको सेटा आमे असेसमेंट थ्रू रे करि परिबा ना ताको स्किल को देखि मध्ये आमे रेटिंग करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इंक्लूडेड ऑप्शन ए मेमोराइजिंग फैक्ट ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑप्शन सी एनालाइजिंग सिचुएशंस ऑप्शन डी कॉपिंग नोट्स। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग जति हमें उच्च अभिलाषापूर्ण चिंताधारा रखिबा तो सेटा केमिति होइथबो एनालाइजिंग सिचुएशन आमे कोनोसी चिंतन करिकि आमे एनालाइज करि परिबा कोन कोन सब संगठित हेछि बा गठित होइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन करिकुलम रेफर्स टू स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर all learning experiences option c only textbooks only teacher। तो only जोटा आसीबो सेटा गोटे नेगेटिव मार्क सेटा तो केपे आसीबोनी तबे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हबो ना ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस हबो राइट आंसर हेजिबो ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस। तेणु खाली हमें पाठ्यक्रमटा कहले खाली पुस्तकगत ज्ञान तो नुहे समस्त व्यवहारिक ज्ञान मध्ये रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑप्शन ए एक्सक्लूडिंग डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन special school only option c education for all option d education for selected groups। तेणु अंतर्निवेशी शिक्षा कहले हमें कोन बुझी थांती से डिसेबल पर्सन हेई थाउ जहाँ भी जो आकार बा जो दक्षता स्तर होइथिले मध्ये ताको सेटा होची एजुकेशन फॉर ऑल समस्तक पई शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन एजुकेशन दैट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड
ऑप्शन ए फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन बी नॉन फॉर्मल एजुकेशन ना ऑप्शन सी भोकेशनल एजुकेशन, ऑप्शन डी एडल्ट एजुकेशन। जेतले पिलाटी कोनोसी वृत्ति जनित शिक्षा लाभ करते ताको हम कहिथांती भोकेशनल बा धंदामूलक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर एम ऑफ गाइडेंस इन एजुकेशन इज टू ऑप्शन ए डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी प्रोवाइड फिजिकल ट्रेनिंग, ऑप्शन सी हेल्प स्टूडेंट मेक डिसिशंस, ऑप्शन डी पनिश वीक स्टूडेंट्स। तो हमर मुख्य लक्ष्य कौन हेबा दरकार पिला मानको जेतले हम गाइडेंस करिथांती ताहार मुख्य लक्ष्य हेबा आवश्यक जे पिला माने किपरि निज निष्पत्ति निजे नै पारिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ ए टीचर इज ए टूल फॉर ऑप्शन ए पनिशमेंट, ऑप्शन बी प्रमोशन, ऑप्शन सी असेसमेंट, ऑप्शन डी लेसन प्लानिंग। द एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ ए टीचर इज ए टूल फॉर तेणु गोटे वार्षिक शिक्षक मानकर गोटे रिपोर्ट प्रदान करा जाइथे तो सेटा कोन होउची सेटा होउची असेसमेंट परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, experiential learning was introduced by option A Skinner, option B Piaget, option C Kolb, option D Thorndike। तेणु गोटे एक्सपेरिमेंट करिबा बा करिकी शिखिबा जो गोटे रहिला से जो शिक्षाटा रहिला ताको किए इंट्रोड्यूस करिथिले। राइट आंसर हे जिवो कोन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस बाय कोल्ब। मन रखंतु कोल्ब करिबा शिखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method involves learning by doing ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन सी डिस्कशन मेथड, ऑप्शन डी स्टोरी टेलिंग। तेणु केउ मेथड रे पाठ पढ़ेबा द्वारा आमे किछि करिकी शिखि थांती। लेक्चर मेथड तो हबनी, प्रोजेक्ट मेथड हे जिवो राइट आंसर। प्रोजेक्ट आमे निजे बनेबा एवं ताको विशद आलोचना करिबा बुझिबा जहा द्वारा ज्ञानटा चिरस्थायी हेई परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड टू फाइनल ग्रेडिंग, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, ओनली एग्जाम्स, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। तेणु फॉर्मेटिव असेसमेंट ता कहा पई आवश्यक अटे, केउ केउ कारण पई आवश्यक अटे। राइट आंसर है जो मॉनिटरिंग प्रोग्रेस केतेटी पिलार शिक्षण दक्षता वृद्धि पाइछि ताको से माने आकलन करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइकोमोटर डोमेन वाज प्रपोज्ड बाय ऑप्शन ए ब्लूम, ऑप्शन बी हरो, ऑप्शन सी गने, ऑप्शन डी स्किनर। द साइकोमोटर डोमेन वाज प्रपोज्ड बाय तो पिलाटीर किपरि भाबरे मानसिक दक्षताटा गतिशील होइथे ताको किए प्रपोज करिथिले हरो करिथिले। राइट आंसर हे जिवो हरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज हाईएस्ट माउंटेन पीक उच्चतम शिखर विश्वर उच्चतम शिखर पर केउ पर्वतर उच्चतम शिखर रहिछि। ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी नंदा देवी। राइट आंसर कोन हे छिबो माउंट एवरेस्ट। त माउंट एवरेस्ट रो सबुठारो होछि हम विश्वर उच्चतम शृंग रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज सबुठारो लंबा पर्वत केउठी हमर सारा विश्व मध्यरे। ऑप्शन ए अंडीज, ऑप्शन बी हिमालयस, ऑप्शन सी रॉकीज, ऑप्शन डी अल्पस। कोटा हे जिवो एटा एंडीज भी बोले हमें कहि परिबा। राइट आंसर हे जिवो सबुठारो लंबा माउंटेन होची एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज जदि हमें भारत कथा कहबा तले सबुठारो उच्चतम शिखर केउठी। ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी कमेत, ऑप्शन डी अन्नपूर्णा। द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज राइट आंसर कोन हे जिवो कांचनजंगा। मने रखंतु जदि इंडिया कथा पचारिबो कांचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन माउंट एवरेस्ट केउ ठारे अवस्थित। ऑप्शन ए इंडिया चाइना, ऑप्शन बी नेपाल चाइना, ऑप्शन सी इंडिया नेपाल, ऑप्शन डी भूटान और चाइना। तो केउ केउ देश को लागि किना अछि हमर माउंट एवरेस्ट। राइट आंसर कोन हे छिपो माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल एंड चाइना। नेपाल और चाइना को लागि कि रहि छै माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, K2 peak is in which range? K2 रो शिखरटा केउ पर्यंत विस्तृत अटे। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी काराकोरम, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी अल्पास। तेणु K2 peak is in which range? राइट आंसर एठी हे जिवो काराकोरम रेंज पर्यंत विस्तृत अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी पीक इज इन ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल।
ତେଣୁ ନନ୍ଦା ଦେବୀ ଆମର ପର୍ବତ ଶିଖର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ନନ୍ଦା ଦେବୀ ପିକ୍ ଇଜ ଇନ୍ କେଉଁଠି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଟିକେ ଦେଖିବା କେତେ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଠିକ ଦଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। କମେଣ୍ଟସ ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କେତେଟି ଆନ୍ସର ଆପଣ ଠିକ ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏସିଆ। ଅପସନ ଏ କାରାକୋରମ, ଅପସନ ବି ହିମାଲୟ, ଅପସନ ସି ହିନ୍ଦୁକୁଶ, ଅପସନ ଡି ଆରାବଲି। ତେଣୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ପର୍ବତ ଆମ ଏସିଆ ମହାଦେଶ କଥା ଯଦି କହିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ପର୍ବତ ହେଉଛି ହିମାଳୟ। ଏସିଆ ମହାଦେଶ କଥା ଯଦି ପଡୁଛି ଲମ୍ବା ଉପରେ ହଉଛି କଣ? ହିମାଳୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, Aravalli range is mainly in Gujarat, Rajasthan, option B MP, UP, option C Bihar, Jharkhand, option D Odisha and West Bengal। ଅରାବଳୀ ପର୍ବତଟା ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅରାବଳୀ ପର୍ବତ ବା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗୁଜରାଟରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅରାବଳୀ ପର୍ବତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପିକ୍ ଇଜ ଇନ୍ ଅପସନ ଏ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ ବି ନେପାଳ, ଅପସନ ସି ଚାଇନା, ଅପସନ ଡି ଭୁଟାନ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପିକ୍ ଟା ଆମେ ସେମିତି କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? କେଉଁ ଦେଶରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଭାରତରେ ନା ନେପାଳରେ ନା ଚାଇନାରେ ନା ଭୁଟାନରେ? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପିକ୍ ଇଜ ଇନ୍ ନେପାଳ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଉଛି ନେପାଳର। ନେପାଳରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଲପସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଇଜ ଇନ୍ ଅପସନ ଏ ଏସିଆ, ଅପସନ ବି ୟୁରୋପ, ଅପସନ ସି ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତେବେ ଆଲପସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ବା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବିସ୍ତୃତ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମିଳେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ୟୁରୋପରେ ହଉଛି ଆଲପାସ୍। ୟୁରୋପରେ ହଉଛି ଆଲପାସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିନ୍ଧ୍ୟ ରେଞ୍ଜ ଇଜ ଇନ୍ ଅପସନ ଏ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ ବି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ ସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ଅପସନ ଡି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେହେତୁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ କହିଛି, ବିନ୍ଧ୍ୟ କଥା ଆସିଲା ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାରତ କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଏହା ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ନା ଦକ୍ଷିଣ? କେଉଁ ଦିଗରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାରାକୋରମ ରେଞ୍ଜ ଲାଇଜ ଇନ୍ ଅପସନ ଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଓନ୍ଲି, ଅପସନ ବି ଚାଇନା ଓନ୍ଲି, ଅପସନ ସି ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚାଇନା, ଅପସନ ଡି ନେପାଳ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ କାରାକୋରମ ଯୋଉ ପର୍ବତଟା ରହିଛି ତାହା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚାଇନା। ତିନୋଟି ଦେଶକୁ ଲାଗି କରି ରହିଛି କାରାକୋରମ ପର୍ବତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାଉଣ୍ଟ କିଲିମଞ୍ଜାରୋ ଇଜ ଇନ୍ ଅପସନ ଏ କେନିଆ, ଅପସନ ବି ତାଞ୍ଜାନିଆ, ଅପସନ ସି ଇଥିଓପିଆ, ଅପସନ ଡି ସୁଦାନ। ମାଉଣ୍ଟ କିଲିମଞ୍ଜାରୋ ଇଜ ଇନ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସରେ ଆସେ, ତେଣୁ ପ୍ରିପେୟାର ରହିବା। ମାଉଣ୍ଟ କିଲିମଞ୍ଜାରୋ ଇଜ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍? ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମାଉଣ୍ଟ କିଲିମଞ୍ଜାରୋ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, K2 ପିକ୍ ଇଜ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରେଞ୍ଜ? ତେଣୁ K2 ର ପର୍ବତ ଶିଖରଟା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? ଅପସନ ଏ ହିମାଳୟ, ଅପସନ ବି କାରାକୋରମ, ଅପସନ ସି ଆଣ୍ଡିସ୍, ଅପସନ ଡି ଆଲପାସ୍। ତେଣୁ K2 ପିକ୍ ଇଜ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରେଞ୍ଜ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? K2 ପିକ୍ ଇଜ ଇନ୍ କାରାକୋରମ ରେଞ୍ଜ, କାରାକୋରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନନ୍ଦା ଦେବୀ ପିକ୍ ଇଜ ଇନ୍ ଅପସନ ଏ ନେପାଳ, ଅପସନ ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଅପସନ ସି ସିକିମ, ଅପସନ ଡି ଅରୁଣାଚଳ। ତେଣୁ ନନ୍ଦା ଦେବୀ ପର୍ବତ ଶିଖର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ଦେଶରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେବ? ନନ୍ଦା ଦେବୀ ପିକ୍ ଇଜ ଇନ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ନନ୍ଦା ଦେବୀ ପିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏସିଆ। ତେଣୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ପର୍ବତର ନାମ କଣ? ଅପସନ ଏ କାରାକୋରମ, ଅପସନ ବି ହିମାଲୟ, ଅପସନ ସି ହିନ୍ଦୁକୁଶ, ଅପସନ ଡି ଆରାବଳୀ। ତେଣୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ଇନ୍ ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏସିଆ, ଯଦି ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକି ମାଉଣ୍ଟେନ ଆର୍ ଇନ୍ ଅପସନ ଏ ଏସିଆ, ଅପସନ ବି ୟୁରୋପ, ଅପସନ ସି ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ଅପସନ ଡି ସାଉଥ ଆମେରିକା। ରକି ମାଉଣ୍ଟେନ ଟା କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ? ରକି ମାଉଣ୍ଟେନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ରକି ମାଉଣ୍ଟେନ ଆର୍ ଇନ୍ ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ରକି ମାଉଣ୍ଟେନ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका सबुठार उच्च पर्वत शिखर अफ्रिका रे केउठी रहिछि ऑप्शन ए माउंट केनिया ऑप्शन बी किलिमंजारो ऑप्शन सी अटलास ऑप्शन डी एल्गन तेणु हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका तेणु अफ्रिका रे सेमती केउ पर्वत देखिया पई मिले सर्वप्रथम तेणु हे गला किलिमंजारो मन रखंतु अफ्रिका रे किलिमंजारो नेक्स्ट क्वेश्चन सातपुरा रेंज इज इन सातपुरा रेंज इज इन ऑप्शन ए नॉर्थ इंडिया ऑप्शन बी साउथ इंडिया ऑप्शन सी सेंट्रल इंडिया ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया तेणु सातपुरा रेंज आम जदि देखा भारत मध्य तेज भारत मध्य केउठार अवस्थित उत्तर भारत ना दक्षिण भारत ना पूर्व भारत राइट आंसर हो सेंट्रल मध्य भाग रही भारतर नेक्स्ट क्वेश्चन शिवालिक रेंज इज पार्ट ऑफ ऑप्शन ए ग्रेटर हिमालय ऑप्शन बी मिडिल हिमालय ऑप्शन सी आउटर हिमालय ऑप्शन डी काराकोरम शिवालिक रेंज को पर्यंत विस्तृत पार्ट कहार गोटे पार्ट अटे राइट आंसर एठी कौन है आउटर हिमालय हिमालय पर पार्श्व रही शिवालिक रेंज शिवालिक पर्वत रही नेक्स्ट क्वेश्चन हाईएस्ट वोल्केनो माउंटेन इज ऑप्शन ए फुजी ऑप्शन बी किलिमंजारो ऑप्शन सी मौना लोआ ऑप्शन डी इटना हाईएस्ट वोल्केनो माउंटेन इज सबुठारु उच्चतम वोल्केनो माउंटेन टी कौन अटे तार नाम होछि किलिमंजारो मन रखंतु किलिमंजारो नेक्स्ट क्वेश्चन जस्कर रेंज इज इन ऑप्शन ए लद्दाख ऑप्शन बी सिक्किम ऑप्शन सी आसाम ऑप्शन डी ओडिशा तेणु जस्कर रेंज इज इन जस्कर रेंज बा जस्कर पर्वतटा हमर केउ पर्यंत विस्तृत बा रेंज टा कोड देखिया पई मिले राइट आंसर हमर हे जिवो सिक्किम जस्कर रेंज हला सिक्किम तेबे पिला माने जदि वीडियो भलो लागुथाय तो निहाती भाबरे मतामत दियो लाइक कमेंट और शेयर करिया को जम्मा भूला नहीं और जदि प्रथम थर पे मो चैनल को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करिनियो आज पई एतिकी देखाब आ गोटे नवा वीडियो रे।